In our last lecture, what we have seen that this is suppose that our autoencoder, this is our encoder part, this is our decoder part, sampling, and yes. This was the elbow in which we are having our reconstruction loss and the KL divergence losses. And we wanted to, so this loss, you can see that's not a complete loss because it's actually an elbow in which you are having a reconstruction. But this you have to maximize, this you have to minimize. That's why it's not a single loss. So we convert it into a single loss in which this becomes a reconstruction loss and this becomes the KL divergence, and then we minimize. That is we used to do in VA. And then what we have seen is that in any such type of problem in which we are using L2, MSC is going to create problems. And what were those? Is that you are having a image and all of these images are having same MSC with this guy. And what we have seen is that MSC, which is actually being defined L loss as this, which essentially is equivalent to be seen as a directly proportional thing to the MSC. And if I give you a function like this, in which probability of X given mu and sigma of that distribution, we wanted to know that with what probability this X belongs to this distribution is that we just have to have this formula. And in this formula, you just take this X and place it over here. And the value that you are going to get, that is the probability by which you are saying that this X is belonging to this distribution. And then you see that whether this value is more than a threshold or less than a threshold. But here essentially what we have seen is that suppose that instead of this X, if you started to get, the data that you are actually predicting, your predictions are actually going to be X hat. And that's actually X hat. And suppose that this is equal to the mu and the sigma square is going to be equal to suppose that the 1. And then essentially this probability that from, if you have seen this, with what probability you are saying that this is same as this is actually the reconstruction type of loss. It can actually be seen as this, in which taking the log both of these sides, it can easily be shown that minimizing L2 loss is equivalent to maximizing the log likelihood. So if you have a log likelihood, if you have a Gaussian function and if you want to maximize the log likelihood of that, it's actually the same that if you maximize this or minimize this, essentially we have used this thing, the same thing in our elbow as well. But what is the problem here is that your Gaussian or the elbow or L2 or MSC, what they are trying to do is that suppose they are trying to actually use this single mode Gaussian to estimate the probability that you are looking for. But suppose that your data is not following a single mode, it's having a multiple mode. And if it's having multiple modes, two distinct modes, then the mode that by which you are going to follow or estimate, it has to be lying in between. Otherwise, if it comes more towards it, the loss becomes high, or it becomes more towards it, then the loss becomes high. So it's better to always come up and play the thing which is in between. And that is essentially being done by MSE at some point of time. It is not trying to make something which is very close to this or very close to this. Instead, it started to make the things which are in between. And because of that, what happened is that instead of giving us a very clear cut or very clear images coming from mode 1 or mode 2, it is started to give us the blurred images. So MSE is prone to blur, one thing. So Gaussian got centered right in the middle. This was the one problem that we have got when we are using average of sample. So when we are using M2, L2 losses. The other is that the KL divergence, in which suppose that if I have a distribution P, which is my target distribution, and I wanted to estimate this distribution using this Q. So we have a forward KL in which P and Q and the reverse Q and P, and the distribution is P log Px by Q and Q logs Qx by P, and we can see that in our VAE we are actually using the reverse scale. The reason why you are using a reverse scale is that in a forward KL you can see that's Px log of Qx, Px log Px by Qx, and if your Qx becomes equal to 0 and Px is not equal to 0,
this thing is actually taking it to undefined or a very high value. And if it becomes very high, and if you're using this type of loss, so this loss is actually going to avoid such situations. In order to avoid such situation, it will say that, suppose that if you have a model like this and you wanted to estimate it via this. Hello. I request, hello, I request all of you to please mute your mics. Please mute your mic. Yes. So it's going to happen is that we have a distribution like this, and we have got a Q distribution by which I wanted to somehow estimate this. What's going to happen is that it don't allow that QX becomes 0 and PX is not 0 at that point of time, but it is happening over here. Suppose that it becomes something like this. This moves inside, and suppose that you have got your initial Q distribution somewhere like here. Then what will happen? It will say, oh, you are actually trying to estimate P and you are inside. So what happened is that this whole area in this, I'm having a very big loss. And if I'm incurring a very big loss, I do not want you to, estimate such a Qs by which I'm getting a very big loss. So what I should be doing, this forward KL is actually trying to stretch it over here. So it keep on stretching like this. It keep on stretching like this. And that is why it's mean centering. It stretches and get it the mean centered. The other thing, and somebody was asking at that point of time that that what will happen if it becomes something like this, which means that your QX is not 0, but PX is actually 0. So as I have said that it's essentially like a long tail. So forward KL favors long tail, and reverse KL do not favors long tail. So it may be the case that it will say you have to be like this, but I'm even okay if you go slightly out, but you should not be missing anything in between. It should not be like that you finish over here or finish over here or finish over here. At least you will have to cover the whole thing. In the case of reverse scale, the same thing is going to happen, but in the reverse way, that it actually says that I'm not going to allow that this becomes equal to 0 when this thing is not 0. In that way, what will happen that it's going to have something like this, and this is saying that these places where your QX is not 0, but PS is essentially 0, it will say no, you cannot have this type of thing. So that's why you'll have to come inside, and you will have to come inside, so actually shrinking, and it keep on shrinking in such a way so that it may somehow fit into some particular mode. So that's actually mode seeking and mean seeking behaviors that you can see in any KL type of minimization. So because of this, this forward is not being used. You can see here it is stretches Q, support long tail. This is actually shrinking Q and avoid long tail. This is mean seeking. This is mode seeking. This is overestimation. This is underestimation. This is a general averaging behavior, and averaging behavior done by KL as well as MSE, then it becomes too much amount of blur. This is actually mode seeking, and MSE is actually mean seeking. So that is why I'm merging mean seeking along with the second loss, this KL. It's being used in BAE, and using this type of thing, it started to work and it started to give you certain amount of results. But it comes that KL is also going to have certain different types of problem. The other problem, and that's actually the inherent problem, you cannot remove such a problem. And the problem is that if the two distributions between which you want to find out the distance, if they are not having anything common, suppose that one distribution is here and another distribution is here in time. Let us show that this is my axis, one distribution is here, other distribution is here, and there is no overlap between them, then KL is not being defined. Or if I say KL is going to be infinity, which is going to be a very big number, very big number. Now what happened that, yeah, it is saying that it's a very big number and you somehow have to reduce this. So you are getting a loss. So your loss is saying that, yes, I need to come in this direction or this direction. I don't know. But if you come in this direction also, even so, suppose that this is the thing that I wanted to estimate and your current estimate is this. So your loss is actually infinite.
So if you take it in this direction, your loss is not reducing. You take it in this direction, your loss is not reducing, because things are not becoming overlapping until and unless you move inside this. And because of that, even though you are getting losses which are very high, your network is not able to really understand that in that high dimensional parametric space, how to move so that your loss becomes somehow got reduced, because your loss is actually not changing if things are not coming or overlapping. So in VAE, what you can see is that for certain type of initializations, your network is started to converge, and for different initialization, your network is not converging at all. And that is essentially the way that if your estimation is going to be this, and the function by which you are estimating is something over here, probably it may converge, but if it's over here, it may not converge. So you keep on trying for different types of initializations or different multiple random initialization, and some initialization clicks, and then your network started to somehow saturate. So this is the problem with the KL. And what we have seen is that I have shown you P, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and Q6. And using all of them, what I have said is that you have to understand that what are the forward and the reverse KL, these 12 values. And I assume that if you have done, please write in the chat box that how many of you have done and find out these 12 values. Keep on writing in the chat box. Soon I'm going to see that how many of you have done. Those who have done, they must have seen that there is a clear-cut containment function, containment inference, that if things are contained, the values are becoming available. If it is not contained, the values are not available. The amount of containment is high, then the value is also less. If the amount of containment is low, then the value is low. So it's all it's just saying that if I wanted to estimate this, and if it is this, then the value is high. If it is this, the value is high. If it is this, value started to somehow cut lower. And suppose that this is the thing, and as soon as you move in, your value becomes smaller and smaller. Now let us see that how many of you have done this. Done only 6. Now you can see and you can understand that how many Richard Thakur, Manpreet, Divyansh, Himani, Chandresh, Manuvendra, and Aditya. Let me tell you, out of these, those who have done, only 3 Ananya Shukla has said done. Please do not fake it. It doesn't going to give you any marks and all. It is just for my understanding that if you have not done, that is the wrong part done by you. How many of you are right now attached? Only 29. So again, you will see that the things are free. Focus में चल रहा है तो सब लोग कर रहे हैं. बहुत ही जल्दी मैं अभी वर्कशॉप कराने जा रहा हूँ डीप लर्निंग की, जिसमें 10,000 रुपए लूंगा मैं. इसी तरह की चीजें पढ़ाऊंगा. 10,000 रुपए में मैं पढ़ा रहा हूँ. And believe me, too many students are going to come, and they are going to come. Why? Because they are interested. Why? Because they wanted to learn these new things. And believe me, during the class, along with all of the students, in 5 to 8 minutes, every student used to do all these 12 things in front of me. Why? Because they have paid the money. You all are feeling that everything is free. This whole world is no free lunch. As I've said that in deep learning, there is no free lunch. You are assuming that's a free lunch, but you are spending huge amount of money to get these lectures free from me. और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें जिन भी लोगों ने इसमें यस बोला है, उसमें से कम 3 लोग जो हैं वो तो दूसरे इंस्टीट्यूट के, मैं तो उनको पढ़ा रहा हूँ. उसके अलावा कम से कम नहीं तो 3 या 4 ही बच्चे हैं जिन्होंने इसको किया. आप घर पे बैठे रहिए और दिन भर पेंडेमिक के बारे में सोचिए. और इनफैक्ट बहुत से बच्चे वो सब भी नहीं सोच रहे हैं, दुनिया भर की बातें, गाने और वीडियो और यही सब कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, आप अपने समय, जीवन का इतना बड़ा समय बर्बाद कर रहे हैं जिसके के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं. मेरी क्लास में आई अज्यूम दैट कि अराउंड 50 बच्चे तो होंगे, 50-60, मुझे पता नहीं, बट समथिंग लाइक दिस. इज एनीवन नो दैट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे हैं? दक्ष या कोई अगर कोई जानता हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं कितने? वो चैट में लिख सकता है. व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कितने बच्चे हैं, या आप लोग क्विकली देख के अगर कोई बता सकता हो. और मेरी क्लास में अगर 50 हैं और 30 आ रहे हैं, जिसमें से 3-4 तो बाहर से है. सो इससे ही आप समझ सकते हैं कि वो लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. और एक
नकली बात लोगों, अभी बोलो 78, मुझे बाप रे, तो इतनी तो नहीं है यार 78, इसमें इधर उधर के बहुत से होंगे जो भाग भाग गए होंगे, बट फिर भी मेरा मानना है 60 तो बच्चे रहे होंगे जो कि मेरी क्लासेस को मतलब दे आर क्रेडिटिंग, और 60 या 65 में 30 बच्चा यहाँ बैठा है, बाकियों को कुछ नहीं आता है, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। आप पूछ के देखिए अपने दोस्तों से, और उन लोगों को लग रहा है कि दे आर यूजिंग माय यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब वीडियो से समझ ले रहे हैं। यूट्यूब वीडियो दक्ष ने डाल दी है, आज तक मैं देख रहा हूँ मेरे जो नए वीडियो अभी पड़े हैं जिनमें मैंने बीएई कराया था, I assume that only 2 or 3 views are there, only 2 or 3 views, जो कि मेरे ख्याल से दक्ष ने तो खुद ही डाल के एक आधा बार चेक किया होगा और एक आधा बार मैंने देखा होगा कि ये चीजें ठीक से चल रही कि नहीं, तो किसी ने कुछ भी नहीं देखा हुआ है। ये नम्रता मलखानी आ गई क्या? इन्होंने मेरे को एक बार कहा था कि आने वाली है। हाँ ये आ रही है। हाँ हेलो, यस सर। आपने लेक्चर सुने हैं? सर जो लेक्चर्स मैं अटेंड नहीं कर पाई जो यूट्यूब पे है वो मैंने यूट्यूब से देखे हैं, अभी यही नहीं, पूरा लेकिन अभी किया जो है। पिछले पिछले हाँ सर, 1 या 1.5 पिछले 4 लेक्चर्स वीएई के रिवाइज किए हैं। तो एक व्यू तो आप ही का हुआ क्योंकि उसमें 2 ही 3 व्यू है, तो विच मीन्स दैट कि अगर एक नम्रता मलखानी ने देखा है तो बाकी जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं देखा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट बिग प्रॉब्लम। मे बी आप अटेंड कर रहे हैं तो ये एक्चुअली क्या होगा, अच्छा मैं इसको दिखाता हूँ, यही है वो आपके सामने ही आ गया। तो अब होगा क्या कि ये हो रहा है MSc, तो ये है मोड नंबर 1, दिस इज माय मोड नंबर 1। ये बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और ये डीप लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे दुनिया की क्लास अटेंड कर रहे हैं और ये वर्ड लर्निंग सीख रहे हैं। ये जो वर्ड की लर्निंग सीखेंगे इसका ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये यही जानते हैं। बहरहाल जब ये होगा, और ये कौन है, ये आदित्य निगाह, मैं इनको एवरेजिंग करनी पड़ेगी बीच में, तो मैं एवरेजिंग करूंगा नहीं, मैं मोड सीख कर लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप ही की भाषा में पूरी बिल्कुल टेक्निकल बात आपके सामने कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। और अगर लोग सोच रहे हैं कि एवरेजिंग हो जाएगा और पेंडेमिक और बीच में मुझे मिल जाएगा, तो एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है ना। मैं वीए नहीं हूं, मैं मोड सीख करूंगा और एक मोड को जा करके ये मोड पास होगा, ये मोड फेल होगा। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, लोग इसको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आपको बताने की कोशिश करूँ, बहुत स्लोली। जो लोग इसको समझ भी जाते होंगे वो बेचारे सोचते होंगे कि ये एक ही चीज 3 3 बार बताते रहते हैं। कुछ लोग जल्दी समझ भी जाते होंगे, कुछ लोगों ने अपने आप देख के समझ लिया होगा। उसका रीजन ये है कि आपको नहीं पता कोई ऐसा लड़का है जो नहीं समझ पाया और वो मुझे दिख रहा होता है, तो मैं इसलिए बताता रहता हूँ। आप लोगों की प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि चूंकि बहुत सारे लोगों को फ्री में मिल रहा है, और फ्री में तो आप जानते ही हैं, फ्री में सिर्फ होम्योपैथिक की दवाई मिलती है लोगों को लगता है, इसीलिए उनको लगता है कि भाई इससे तो कोई फायदा होना नहीं है। ये मेरा बहुत ही क्लियर कट सजेशन है, मुझे वही बच्चे हर रोज दिखते हैं जो रोज कनेक्ट होते हैं। बस आज ये मुझे मिल गई हैं नम्रता मलखानी, इससे पहले ये नहीं दिख रही थी। इनका नाम मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने 1 2 बार मुझे मेल करके पूछा भी कि क्लासेस का कैसा चल रहा है, और ये अटेंड कर रहे हैं। ये बात मुझे इन्होंने खुद ही बताई थी क्लासेस। बाकियों के बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि वो मेरा लेक्चर सुनते हैं नहीं सुनते हैं, और गायब भी हो गए हैं, जैसे कि रोहित भामू आज गायब है, रोहित भामू आज दिख नहीं रहे हैं। खैर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, हम लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, और यहाँ पर मेरे ख्याल से लाइव लेक्चर्स जो चलते हैं इनके बारे में जितने भी लोगों से अभी तक मैंने पूछा आपके सामने ड्यूरिंग द क्लास, एवरीवन हैज सेड दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर देम एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टफ ड्यूरिंग द क्लास। कुछ लोग इधर उधर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप करते रहिए इंटर्नशिप। ये बिल्कुल वही है कि आप पढ़े बिना एग्जाम देते रहिए, फेल होते रहिए। आप फालतू की इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप डीप लर्निंग में फेल हो जाएंगे, आपको ये बात पता ही नहीं है। जिस दिन आप फेल होंगे उस दिन आपको पता चलेगी, तब आप बोलेंगे कि पैंडेमिक और ये और वो। जबकि यहाँ पर पैंडेमिक है तो ये 30 बच्चों के लिए भी है ना। इन 32 28 29, अच्छा इसमें से एक मैं हो गया, एक दक्ष हो गए, 2 तो ये हो गए और 3 वो, तो 5 लोग तो इधर से वैसे ही और कम हो गए।
So this is really poor. The students who are not actually coming here and they are really going to suffer, or if they are not, then I'm going to come up with such a loss function. Because of that they are going to get more and more losses. ठीक है, तो वो लॉस फंक्शन जैसे अभी मैं गैन में बदल दूंगा तो ये मोड और सीकिंग खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है कि एवरेजिंग हो रही है। मैं गैन के फंक्शन में लॉस को बदलने वाला हूँ, जैसे ही मैंने लॉस बदला तो ये एवरेजिंग नहीं होगी। यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यूज एंड बेटर इमेजेस। प्लीज इन्फॉर्म अदर्स कि ये वाली स्ट्रेटजी छोड़ दे। और एग्जाम और क्विज तो हाँ, तो मैं बहुत ही जल्दी वाइवा लेने वाला हूँ, और इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली मी हु इज गोइंग टू टेक द वाइवा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली वन वाइवा दैट आई एम गोइंग टू टेक. I am going to take extended viva of each and every student for more than 5 to 10 minutes, and at least 3 to 4 such vivas at different levels. You will be having level 1, then level 2, then level 3 or level 4, maybe depending upon whatever the TAs that we have. And this is going to be the simplest level. This is going to be slightly complex. You will have to clear this, then you will have to clear this, then you will have to clear this. And each of them is going to be around 10 minutes वाइवा। 10 मिनट आप अकेले और वाइवा दे रहे होंगे, और उसमें पूरा बाहर निकल करके आ जाएगा कि ये लड़के को क्या पता है क्या नहीं। तो सबसे पहले कुछ सिंपल चीजें पूछेंगे, क्रॉस एंट्रोपी और ये वो। एंड बिलीव मी, आप क्रॉस एंट्रोपी भी नहीं बता पाएंगे प्रॉपरली। इंटरनेट और वो सब आप वहां खोल भी सकते होंगे, वैसे इट्स नॉट अलाउड ड्यूरिंग द वाइवा। इट इज नॉट अलाउड कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करें। हम लोग आपके वीडियो को कैप्चर करके और उसको पूरा देखते हुए आपके 3 या 4 वाइवा होंगे। और अगर मैंने हर बच्चे का 3 वाइवा भी करा दिए 10-10 मिनट के, जिसमें से कि एक बेसिक होगा, एक मिड लेवल होगा और एक एडवांस लेवल होगा, ये वाइवा मैं लूंगा और ये दोनों वाइवा टीएस लेंगे। और अगर आप इसके तीनों के नंबर होंगे और इन तीनों के नंबर जोड़ूंगा और उसी से आपका ग्रेड बनेगा। और क्वेश्चन आपके सामने जो एडवांस लेवल में आएगा वो ये होगा कि मुझे बताओ VAE में रिवर्स स्केल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। या फिर हो सकता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ये आपको दे दूं और कहूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके साथ KL डाइवर्जेंस निकालो। निकालते रहो कॉपी में और अभी बताओगे। अब कहाँ ढूंढोगे? इंटरनेट में मिलेगा तुम्हें, वहीं बना दूंगा आपके लिए सवाल। आप ढूंढते रहिए, नकल करते रहिए। बल्कि मैं कहूंगा JSD के अंदर क्या फायदे थे, JSD कैसे निकलता है, 2 के बीच का JSD निकालो। या फिर मैं ऐसी चीजें पूछूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं वही पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ वही पूछूंगा जितना कुछ मैंने पढ़ाया। लेकिन मैंने ट्रिवियल चीजें नहीं पढ़ाई हैं, बिलीव मी। एंड हो क्या रहा है कि बच्चे जब आते नहीं है क्लास में और उसके बाद वो मुझे मेल कर करके बताते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो यार वो नहीं समझ में आएगा भैया। या हाई स्कूल इंटर की मैथ नहीं चल रही है कि टीचर बैठे हैं कुछ भी बताते जा रहे हैं। अगर आप अपने आप चीजों को पढ़ के नहीं समझ सकते और ऊपर से क्लास के अंदर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, मैं विश्वास से कहता हूँ आप जाएं इधर उधर ढूंढें। आई हैव टेकन दिस स्टफ फ्रॉम 6-7 प्लेसेस। वहां से मिला जुला करके बहुत सारे लोगों ने कहीं पे गुड फेलो के लेक्चर से, कहीं डॉक्टर अहलाद कुमार के लेक्चर से, कहीं अली गोडसे के लेक्चर से, कहीं मितेश ठापरा के लेक्चर से, इतने सारे लेक्चर्स को सुनने के बाद और 2 साल में बहुत बार इसको पढ़ा करके मैं इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे कि इसको बताएं कैसे ये सारी चीजें। और आप सोचते हैं कि भाई बिना क्लास में आए आप समझ सकते हैं। So this is going to create a big problem and mess for those who are not attending. I request आप अपने पुराने दोस्तों को ये बात बता दें कि एटलीस्ट YouTube में सुने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो YouTube पे सुन रहे होंगे। बट YouTube में 2 दिन पहले लेक्चर डाले जा चुके हैं और 1-1, 2-2 व्यू है। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी नहीं सुन रहा। और आप लोगों को भी जरूरत है 2x की स्पीड लगाइए इंटरनेट पे, YouTube पे जाइए, 2x पे सुनिए मेरे लेक्चर, 3x पे सुनिए अगर आपको लगता है कि मैं ट्रिवियल बातें स्लोली बता रहा हूँ। और जो रिवाइज कर रहे हैं वो तो 1.5 और 2 में आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल इसको एकदम रट ले, समझ ले अच्छे से। बहुत डिटेल में बताया गया है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बोला हो कि ये लिखा हुआ है इसको मान लो। मैं पूरा मौका देता हूँ आपको सवाल पूछने का, और लोग सवाल पूछते भी, ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ देते हैं। 1-1 सवाल पूछते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो बहुत सारे मेरे को पता भी नहीं होते। फिर मैं उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछे जाते हैं। वही क्लासरूम एनवायरनमेंट है जैसा कि हम लोग क्लास में यहाँ पे महसूस करते थे।
everyone used to say that it's almost similar. Still student is not coming, अपना बता करके कि इंटरनेट नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। इंटरनेट नहीं तो खरीदिए इंटरनेट, और आपका काम ही क्या है इसके लिए, खरीदिए जितना भी इंटरनेट की जरूरत पड़े, 2 GB 5 GB पर डे खर्चा होता है, रोज खरीदिए इंटरनेट, यही तो काम है आपका। वरना आप क्या करने के लिए बैठे हैं IIT मंडी में। खैर इधर उधर की बातें हो गई, अभी बैक टू पॉइंट, जीएस डाइवर्जेंस। तो मैंने कहा कि यार ये प्रॉब्लम हो रही थी, और ये जब दो चीजें कन्वर्ज नहीं करती, अगर ये दोनों बहुत ही ज्यादा दूर है, और ये तो हमेशा ही होना है, चीजें तो दूर ही होंगी, पास में कैसे होंगी। तो किसी चीज को एस्टिमेट करने की कोशिश करें जिसको कि आप जानते नहीं है, और ये आप जिसको जानते हैं ये इसके हमेशा पास में हो, ये तो पक्का पता ही नहीं, और एटलीस्ट ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन चीजें पास में हो, ये तो आपके हाथ में हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक JSD लेकर के आते हैं। JSD क्या करता है कि P और Q के बीच का एक मध्यस्थता करता है, बीच में किसी आदमी को पकड़ता है और कहता है इस बीच के आदमी से P और ये कितना दूर है, और ये कितना दूर है। और इन दोनों ही टर्म्स में आप देखेंगे कि P and M and Q and M, और M के अंदर P और Q दोनों ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये के बीच में, मतलब दैट इज दैट दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली लेस देन P and Q। ये थोड़ा सा पास में तो आ ही जाते हैं क्योंकि M के अंदर P और Q दोनों है। और इससे JSD is being shown that कि अगर both of these distributions are very far and there is no overlap, then still you are going to get a log2 type of things। JS2 की बेटर कन्वर्जेंस शो की गई है। हमने सिर्फ एक जस्ट छोटे से अंदाज में आपको इसको बता दिया वैल्यू के साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द थिंग इज गोइंग टू हैपन इज दैट कि JST की परफॉर्मेंस या कन्वर्जेंस को बेहतर तरह से इट्स बीइंग शोन इन द केस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो अब यहाँ से हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, और वो डायरेक्शन ये होगा कि दैट्स गोइंग टू बी दैट व्हाट वी वर डूइंग इन VAE, x this this and this and this and this। I assume that this thing is everyone is aware of। let us नहीं ये पूछ चुका हूँ बहुत बार, तो इसको छोड़ देते हैं। VAE और GAN में एक सबसे डिस्टिंक्टिव चेंज की बात की थी। VAE और GAN में एक बहुत जबरदस्त चेंज हो रहा है। किसी को अगर वो याद हो तो एक एक करके आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाथ खड़ा करें कि VAE और GAN में हमारा सबसे बड़ा चेंज क्या है। लोग हाथ खड़ा करें। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन बाय वन। अच्छा कोई बताएगा ही नहीं हाथ खड़ा करने से क्या ही होगा। हाँ आशिमा आप बोलिए। आशिमा आप बोलिए पहले। सर आपने बताया था कि VAE में जैसे कि PX बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो हम PZ। अच्छा रुक जाइए समझ गए, रुक जाइए। वैभव आप बताइए। वैभव बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। यस सर। सर VAE में हमारे सैंपल मीन निकलने के बाद जैसे डिकोडर पे हमको कॉम्प्लेक्स हो जाता था वो चीज़ कैलकुलेट करना है, उसको मतलब ट्रेन करना। तो इस पे GAN पे हम इसका ये वर्क सर हम पहले इनिशियल में कर देते हैं। और बढ़िया तरह से बताओ। ये वो बात नहीं है कि नेटवर्क में बदलाव और ये और वो, ये मूलभूत बदलाव, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन GAN एंड VAE। क्या है? चलो अनुष्का आप बताइए। अनुष्का। सर VAE में हम एक्सप्लिसिटली जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉडल करते हैं, और GAN में हम एक ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं और फिर उस पे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। चलिए अभी देखते हैं इस बात को। इसमें थोड़ा वेरिएशन है बट इसको देखते हैं। अनुष्का हो गई। आदित्य आप बताइए। सर वो VAE में जो प्रोबेबिलिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग VAE से वो x से हम लोग z में कन्वर्ट करते हैं ना, उसको वो लेयर लगा के CNN लेयर लगा के। तो वो GAN में हम लोग एक ही बार में मतलब कर देते, मतलब x को उसमें इनपुट कर देते हैं, और VAE में हम लोग x को z में कन्वर्ट करते हैं। z इज लो डायमेंशन वाला होता है। लो डायमेंशन। चलिए इसको भी देखते हैं आदित्य, थोड़ा बदलाव है इसमें। अंकित आप बताइए। अंकित कटियार।
जी सर, हम जैसे वी में हम लोग एक्स से पहले उसे लेटेंट स्पेस में ले जाते थे, तो जेड में ले जाते थे, तो सर गेन में हम लोग सर डायरेक्ट पी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। नम्रता आप बताइए। नम्रता। सर मैंने जैसे देखा था तो आपने बताया था सर और हम सेकंड क्या थिंग लॉस करते थे फंक्शन कि चेंज हो जाता है। जो अंडरस्टूड अंकित। यस, नाउ वीए में नम्रता। हाँ मैंने देखा था आपके वीडियो में कि हाँ आपने बताया था, काफी एम्फेसिस दिया था कि हम जैसे लोअर बाउंड को ठीक करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम लोअर बाउंड को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है हम पूरे को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं जब हम पीएक्स तो वीएई में हम ये चीज करते हैं, जबकि जो ज्ञान है उसमें हम इस तरीके की कोई चीज नहीं करते हैं। मतलब वीएई में फिर करते क्या है, ज्ञान में फिर करते क्या ज्ञान है? में कोई एक्सप्लिसिट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन नहीं होता, पर सर मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत खुद से पढ़ा था ज्ञान और उसके लेक्चर अभी अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, अन्वेश दास आप बताइए। सर वीएई में एक डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं जो जेड म्यू और जेड सिग्मा। ज्ञान में हम एक एडिशनल नेटवर्क लगाते हैं उस चीज के लिए, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बीच में कैलकुलेट करते हैं वो नहीं करते, और एक एडिशनल तो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क बोलते थे, इतना मैंने पहले पढ़ा, अभी पता नहीं। मतलब वो एडिशनल एक नेटवर्क लगाया जाता है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम को हटा देता है। चलो और किसी को बताना है, और किसी को बताना है, हैंड रेज करे, बाकी लोग हैंड रेज डाउन कर लें। अन्वेश, नम्रता एंड अंकित आप अपने हैंड्स डाउन कर लें। और किसी को बताना है? प्रतीक तुम बताओ। सर मैंने ज्ञान इतना अच्छे से देखा नहीं है सर। चलो तो एक बात बताओ, जो अभी नम्रता कह रही थी, वैसे आशिमा ने सबसे सही बताया, उनको मैंने इसीलिए रोक दिया था। नम्रता कह रही थी कि हम एक एल्बो बनाते हैं और एल्बो को मैक्सिमाइज करते हैं, which essentially maximizes our px। ये तो एकदम क्लियर है ना, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। हाँ सर। तो यहाँ पर तुम px को टच कर पा रहे हो? कैन यू टच द px प्रोबेबिलिटी ऑफ x? सर इनडायरेक्टली। हाँ, यही तो डिफरेंस, यही फंडामेंटल डिफरेंस है ज्ञान और वीएई का, कि अंततः तुम्हें निकालना है px, लेकिन px तो आप निकाल नहीं सकते। तो px को निकालने के लिए आपने कुछ खेल खेला और एल्बो की तरफ गए, और एल्बो से इनडायरेक्टली px को मैनेज करने की कोशिश की, और उसके पीछे कारण भी यही बोला कि भाई px इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। फिर गुड फेलो आए और गुड फेलो ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं px को डायरेक्टली टच करूंगा। And that is the major difference between that GAN and VAE, that GAN is directly going to estimate the probability of X. Instead of implicitly learning the probability of X, it is learning explicitly the probability distribution of X. ठीक है, कैसे करता है वही देखते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से सभी लोगों को एक पॉइंट पे ले आया हूं, और अब हम लोग ज्ञान की तरफ जाते। पहली बात, छोटा करके दो तुम्हारे सामने, आपके सामने दो बहुत ही सिंपल चीजें रखूंगा। छोटा इसलिए क्या, क्योंकि दो चीजें एक साथ दिखानी है। सबसे पहली चीज, ज्ञान को देखने का सबसे सिंपल तरीका यह है एनकोडर और यह है डिकोडर। अगर इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, ज्ञान बन गया। पहली बात, क्या बोला मैंने, फिर से आपके सामने, डिकोडर को उठाया इधर ले आया, एनकोडर को उठाया इधर ले आया, क्या बन गया, ज्ञान। कैसे, उसकी बात अभी करूंगा। एनकोडर क्या हो सकता है? एनकोडर कोई भी ऐसा नेटवर्क जो मुझे एक्स की एनकोडिंग दे। अब वो अगर आप एनकोडिंग ऐसी बना ले तो ऐसी हो सकती है, यहां पर किसी दूसरे तरीके की एनकोडिंग अंदर जाती है, बट दिस इज एक्चुअली दैट इट टेक्स एन इमेज एंड गिव यू एनकोडिंग। डिस्क्रिमिनेटर भी टेक्स एन इमेज एंड गिव यू एनकोडिंग। ये एक इमेज लेता है और एनकोडिंग देता है। अच्छा, डिकोडर क्या करता है? डिकोडर ये करता है
डिकोडर ये करता है कि आपसे एक एनकोडिंग लेता है, एनकोडिंग, और उस एनकोडिंग से वो इमेज बनाता है। यहाँ पर भी वो एक एनकोडिंग लेगा, जनरेटर एक एनकोडिंग लेगा और उस एनकोडिंग से इमेज बनाएगा। पहला डिफरेंस आपके सामने, और भी वो चीज दिखाई जाएगी कि ये पीएक्स को कैसे निकालते हैं। लेकिन जब मैंने वीएई पढ़ाया और वीएई पढ़ाने के जस्ट बाद मैं ज्ञान पे आया, तो सभी लोगों को मैंने ये बार बार समझाया कि ये डिकोडर क्या सीखता है। डिकोडर ये सीखता है कि यूनिट नॉर्मल से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल करके मेरे डिकोडर को दिखाओगे तो मैं डेटाबेस की जैसी इमेज दिखाने लगूंगा। फिर लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि यार आप ये एक्स लेते हो, जेड बनाते हो, इससे सैंपल करते हो, जो भी जेड म्यू जेड सिग्मा से, इससे नहीं, इससे सैंपल करते हो, और इससे सैंपल करके जब आप इसको दिखाते हैं तो यही इमेज बनेगी, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा था हाँ, बैच की किसी भी इमेज के साथ यू कैन समहाउ मैनेज। जब ये धीरे धीरे करके ट्रेन हो गया तो अंततः तो आपने बोला कि यार मेरा नेटवर्क यूनिट नॉर्मल से डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट नॉर्मल से सैंपल करके इमेज बनाना सीख रहा है। तो यही काम इसमें इस डेटाबेस की क्या रिक्वायरमेंट है? इस डेटाबेस की ये रिक्वायरमेंट है कि मैं अगर यूनिट नॉर्मल से सैंपल करूं और डिकोडर को दिखाऊं तो जो इमेज बनती है, अब सिर्फ इसको देखो, इसको हटा दो। तो अगर मैं यूनिट नॉर्मल से सीधा, ये है ही नहीं, कोई डेटाबेस है ही नहीं ऐसा, मतलब एनकोडर है ही नहीं, डेटाबेस है, मैं यूनिट नॉर्मल से कुछ सैंपल करूं, डिकोडर को दिखाऊं, जो बनाए, तो उसको मैं यहां से इसके जैसा बनाने की कोशिश करता था ना, इसलिए तो डेटाबेस की जरूरत पड़ती थी। मैंने कहा कि यहां से सैंपल करो, डिकोडर को दिखाओ, और जो इमेज बनती है वो एक्स के जैसे हो। तो एनकोडर का क्या काम है? एनकोडर को तो कोई काम ही नहीं रह गया। इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दें, ये टिपिकल है। जब आप एक्स लेते हैं, एनकोडर को डालते हैं, जेड म्यू जेड सिग्मा आता है, आप जेड म्यू को इसके बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ इससे जब मैं सैंपल करता हूं तो जो बनता है वो इस इमेज के जैसा हो। ये है KVAE का काम। जब ये पूरा नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो आप इसको हटा देते हैं, इससे कुछ भी सैंपल करते हैं, इसको दिखाते हैं, डेटा सेट की जैसी इमेजेस बनने लगती हैं। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, यूनिट नॉर्मल से कुछ भी सैंपल करता हूँ, यूनिट नॉर्मल सैंपल करता हूँ, इसको दिखाता हूँ, जो इमेज बनती है उसको किसी भी डेटा सेट की इमेज के साथ अगर मैं डिफरेंस उसका निकालूं तो वो कैसा होना चाहिए, कम आना चाहिए। इन दो बातों में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है? दोनों बातें आपको समझ में आई? यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए मुझसे। अनुष्का आप पूछिए। सो द थिंग इज कि हमें पहले एक एस्टिमेट मिल रहा था यूजिंग म्यू और सिग्मा। अब अगर हम सीधा उसमें लर्न ही नहीं किया हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन जेड कैसे है, तो अगर हम पहली बार सैंपल करेंगे तो हम बहुत दूर होंगे माइनस मतलब ओरिजिनल माइनस रिकंस्ट्रक्टेड से। तो मेरे को ये लगता है कि, लेकिन अगर ध्यान दे तो मैंने ये काम किया ही क्योंकि पहले जेड म्यू और जेड सिग्मा, एक्स से जेड म्यू और जेड सिग्मा बनवाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इससे कितना दूर है। बदले इसके अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से उठाता यूनिट नॉर्मल, क्योंकि सबको पहुंचाना तो अंत में यूनिट नॉर्मल पे है, मैं यूनिट नॉर्मल के सैंपल्स से ही एक्स बनाना क्यों नहीं सीखता हूँ डायरेक्टली? यूनिट नॉर्मल से ही एक्स बनाना डायरेक्टली क्यों नहीं सीखता? बताइए, क्वेश्चन समझा? यस सर। हाँ बोलिए। कि हमें एक म्यू और सिग्मा तो चाहिए ना। हम जब यूनिट नॉर्मल से सैंपल करते हैं तब हम यूनिट नॉर्मल से लेके उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन के पास एस्टिमेट करके फिर हम उसको रीजनरेट करते हैं वीएई में। हाँ, ऐसा मैंने आपको सिखाया है ना, ऐसा हमने पढ़ा बहुत डिटेल में, और ये हमने अपने बात दिमाग में सेट कर ली कि एक्स को कभी भी छोटा किए बिना काम नहीं चलेगा। तभी आप बार बार कह रहे हैं कि जेड म्यू जेड सिग्मा कैसे। मैंने कहा एक बंदा आया और उसको कहता है कि मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, मैं तो सीधा सीखूंगा कि यूनिट। अंततः आपका डिकोडर क्या सीखा? एट लास्ट आपका डिकोडर क्या सीखा? बोलिए, अंततः आपका डिकोडर सीखा क्या है? मतलब वीएई के केस में ना, वीएई के केस में डिकोडर क्या सीखता है? तो वीएई एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल उसका मीन और वेरिएशन सीख लेता है। और जब ये वाला देखिए ध्यान दीजिए, ये एक गेम है जो उसको सिखाया गया कि हम ऐसे जाएंगे।
अंत में डिकोडर क्या सीखा है कि यूनिट नॉर्मल से कोई भी सैंपल। हाँ बोलिए सर। लेटेंट रिप्रेजेंटेशन सीखता है जो डिस्ट्रीब्यूशन जेड है। हाँ लेकिन लेटेंट रिप्रेजेंटेशन निकालना VAE का काम नहीं था। लेटेंट वेरिएबल्स हो रहा है ऐसा कुछ। देखिए VAE के काम में आपको एक नई इमेज बनानी है तो वो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन निकालना सीख नहीं रहा होता है। हालांकि ये एनकोडर भी वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जनरेशन कैसे होता है, ये डिकोडर अंत में सिर्फ एक ही चीज सीखता है। यूनिट नॉर्मल से कुछ भी उठा करके इसको दिखाओगे तो ये डेटा सेट की इमेज की जैसी इमेज बना देगा। है ना सर डेटा सेट की तरह थोड़ी, मतलब वो तभी बना पाएगा ना जब उसको हम जेड म्यू और जेड सिग्मा देंगे। अगर हाँ ठीक है मैंने बोला कि अब ये हो गया, ये डिकोडर ये सीखा है, इतना डिकोडर सीखा है ना, करेक्ट। यस सर। उसको सिखाने का कि ये चीज सिखाने का एक प्रोसेस ये है। यस सर। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। एक दूसरा प्रोसेस भी है, वो कहता है कि मैं सीधा उसको यूनिट नॉर्मल दिखाऊंगा और कहूंगा कि एक्स बनाओ। आपका कहना है डिफिकल्ट काम होगा ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप यही तो ना कहना चाह रही है ना कि एक्स से अगर आप ये नहीं बनवाएंगे तो सीधा यूनिट नॉर्मल से अगर आप इससे कहेंगे कि भाई तुम बनाओ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। यूनिट नॉर्मल तो सब कुछ रैंडम रखा हुआ है, रैंडम से ये बनाएगा कैसे। यस। क्या आप यही बात कहना चाहती हैं? आप अपने मन में सोच लें, आप बिल्कुल घबराए नहीं, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लगातार पूछे। सर मैं एक बार VAE की ट्रेनिंग डिस्कस कर सकती हूँ? हाँ करिए। सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम एक इमेज लेते हैं, उसको एनकोडर को देते हैं, लाइक एक बैच ऑफ इमेजेस। उस बैच ऑफ इमेजेस में वो हमें उसका मीन बता देता है, उसका वेरिएंस बता देता है। नेक्स्ट टाइम हम एक और बैच लेते हैं और पुराने उसका फिर से मीन और सिग्मा कैलकुलेट होता है और पुराने वाला अपडेट होता रहता है। मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग प्रोसेस है। और इस ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कुछ लेटेंट रिप्रेजेंटेशन या कोई रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन सीख रहा होता है। नेक्स्ट हाँ, लेकिन वो कौन सीख रहा है, ये चीज सीख कौन रहा है? इसमें लेयर नहीं होते, हिडन लेयर्स जो होते हैं। एनकोडर सीख रहे हैं ना, एनकोडर। यस यस। हाँ ठीक है। और फिर जब हम जनरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम नॉर्मल से, मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कुछ सैंपल करते हैं और उसको हम मतलब उसके साथ कोई उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको मीन और वेरिएंस, लाइक मीन से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएशन उसको वेरिएंस उसको ऐड करते हैं और उससे हम इमेज जनरेट करते हैं। सर यही प्रोसेस है क्या? इसमें थोड़ी गलती है, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं कि ये बात हम और किसी से भी पूछते हैं, जैसे कि प्रतीक जैन से पूछते हैं। हाँ सर। तुम बताओ, ये VAE की ट्रेनिंग बताओ, इसमें अनुष्का ने किस जगह पे गलती बताई है? सर मैं अपने हिसाब से एक बार पूरी ट्रेनिंग बता देता हूँ। बताओ सर। सो इसमें कैसे होता है, एक बैच हमने एनकोडर को दिया, अभी वो एनकोडर जेड म्यू और जेड सिग्मा देगा, ये कुछ तो भी नंबर देगा जेड म्यू और जेड सिग्मा। ठीक है, अभी ये जेड म्यू और जेड सिग्मा से हम लोगों ने क्या बोलते हैं, वो पहले तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट सैंपल किया, उसको जेड म्यू से ऐड किया और जेड सिग्मा से मल्टीप्लाई किया और फिर डिकोडर में आगे पास किया। इसने एक्स कैप बनाया, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग का जो बैच था उससे एक्स कैप कितना दूर है और उसका KL डाइवर्जेंस भी देखा। इस पर्टिकुलर लॉस से वो अपने जेड म्यू और जेड सिग्मा को अपडेट करेगा इस तरह से कि ये लॉस मिनिमाइज हो जाए। फिर वापस से दूसरा बैच आएगा, वापस कुछ नया जेड म्यू और जेड सिग्मा, जो जेड म्यू और जेड सिग्मा पहले मिले हम लोग को, उससे वो वापस पूरा चीज करेगा। सैंपल किया उसने यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जेड सिग्मा से मल्टीप्लाई ऐड विद जेड म्यू, और फिर वापस एक्स कैप बनाया, लॉस जनरेट किया और फिर वापस बैक प्रोपोगेट करके जेड म्यू जेड सिग्मा को वापस अपडेट किया। ऐसे करते 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 हम लोग के पास एक ऐसा जेड म्यू और जेड सिग्मा आ जाएगा जो काफी सही होगा, जो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी सैंपल मिल रहा है उसको जेड सिग्मा से मल्टीप्लाई करके और जेड म्यू से ऐड करके सही इमेज मिल रहा है, मतलब डेटा सेट वाले जैसे इमेज मिल रहा है।
ऐसे जाके फिर ट्रेनिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो जेड म्यू और जेड सिग्मा होंगे क्या? खत्म हो जाएगी तो जेड म्यू और जेड सिग्मा, मतलब जेड म्यू क्लोज टू 0 होना चाहिए और जेड सिग्मा क्लोज टू 1 होना चाहिए। हाँ, ऐसा होगा, ऐसी कोशिश है, तभी हमारा लॉस नीचे आया होगा और नेटवर्क कन्वर्ज किया होगा। हाँ, यही प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में डिकोडर को तुमने सिखाने की कोशिश क्या की, ये बोलो, डिकोडर ने क्या सीखा? हाँ सर, डिकोडर ये सीख रहा है कि वो उसको जो सैंपल जो पॉइंट मिला है यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो उससे वो जेड म्यू और हाँ, सो अभी अगर जेड म्यू और जेड सिग्मा 0 और 1 है तो उससे वो एक इमेज जनरेट कर सके। तो बेसिकली ये एक मैपिंग है, एक यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट पिकअप किया, उसको मैं कौन से डेटा सेट के इमेज से मैप कर सकता हूँ। तो एक मैपिंग है ये। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि आपका डिकोडर ये सीख करके आ गया कि यूनिट नॉर्मल से डेटा सेट के जैसी इमेजेस कैसे बनाई जाएं। हाँ सर, करेक्ट। यही सिखाने के लिए तुमने उसको सीधे सीधे नहीं डाला उसके अंदर यूनिट नॉर्मल का पॉइंट, बल्कि तुमने धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया जेड डिस्ट्रीब्यूशन को, कि पहले तुम एक्स से एक्स हेड बनाना सीखो, एक्स या एक्स के द्वारा निकलने वाले जो जेड्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल करते हो, जो कि यूनिट नॉर्मल नहीं होंगे। और धीरे धीरे मेरा नेटवर्क, मेरा डिकोडर ऐसे ऐसे सैंपल्स पाने लगेगा जो यूनिट नॉर्मल के जैसे हैं, और बनाना तो उसको वही है जो हमारे डेटा सेट की इमेजेस हैं। तो धीरे धीरे करके हम अपने डिकोडर के ऊपर ये भार डालते हैं। ठीक है। तो अंततः डिकोडर को जो चीज सिखानी है वो स्लोली कहाँ से स्टार्ट की, जेड म्यू और जेड सिग्मा जो कि पता नहीं आर्बिट्रली क्या थे, वहां से घूमते 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 वो यूनिट नॉर्मल की तरफ आ जाएं, और यूनिट नॉर्मल से इमेज बनाना डिकोडर सीख रहा है लगातार धीरे धीरे। अब ये चीज सिखाने का एक तरीका तो ये हुआ जो मैंने आपके सामने रखा, वीएई, और दूसरा तरीका ये है कि मैं सीधा यूनिट नॉर्मल से कुछ उठाऊंगा और डिकोडर को दूंगा और डिकोडर से कहूंगा जो बनाओ वो इमेज मेरे डेटा सेट के जैसी हो। ओके। ये एक डिफिकल्ट काम लगता है, ये लगता है तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर, भाई आप, हाँ इट इज डिफिकल्ट ना, बिकॉज एकदम से मैं बोलूं कि कुछ भी नेटवर्क कर दे तो जरूरी तो नहीं है कि नेटवर्क कोई भी काम कर पाए, बट यही काम GAN करता है। पहली बात तो हम लोग इस बात पे आ जाएं कि जो हमने VAE को सिखाया था उसी तरीके की चीज GAN भी सीखता है, लेकिन GAN के लॉस फंक्शंस अलग हो जाते हैं और GAN एक कॉम्प्लेक्स टाइप का काम करने लगता है कि ये सीधा सिखाऊंगा, यूं नहीं आके सिखाऊंगा, सीधा डायरेक्ट ये सीखो। और डायरेक्ट ये सीखना उसको मुश्किल पड़ेगा, इसलिए कोई और तरीके से सिखाया जाएगा। बहरहाल अनुष्का, आपको ये बात समझ में आती है या आपके फिर से क्वेश्चन आप पूछिए? डोंट वरी सर, समझ आ गई है। मैं बहुत हद तक वही बोलना चाह रही थी जो प्रतीक ने बोला है, पर मैंने अच्छे से बोला नहीं था। अच्छा, ठीक है, सॉरी। है, आपने ठीक बोला होगा। बस मेरा कहना ये है कि हमारा डिकोडर ये सीख रहा है कि यहाँ से ये कैसे बनाया जाए। ठीक है। इसको सिखाने का एक तरीका तो ये है जो इतना लंबा सा प्रोसेस है, और दूसरा तरीका है GAN जो कहता है कि सीधा सैंपल करके अंदर डाला जाएगा। ठीक है, आ रहा है? अनुष्का, आपको ये बात समझ में आई? मुझे अब क्लियर हो गया है जो मुझे क्लास में डाउट था। अंडरस्टूड। यही बात हम लोग जरा जानते हैं अनन्या से। अनन्या, आप बताइए। अनन्या है? यस सर। आपको ये बात समझ में आई कि एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये जा रहा है? जी। ठीक है ना? ओके, तो यही GAN में दिखाऊंगा। अच्छा अनन्या, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं कहता हूँ एक N से ले लो और यहाँ अंदर पास करो डिकोडर से, तो एक इमेज तो बना देगा ये। अब ये कैसे एंश्योर करे कि ये मेरी डेटा सेट के जैसी एक इमेज है? इसको एंश्योर कैसे करें कि ये डेटा सेट के जैसी इमेज है? क्योंकि L2 लॉस तो है नहीं, वहाँ करस्पॉन्डेंस नहीं रहेगी ना, देयर इज करस्पॉन्डेंस नहीं रह गई ना। यस भाई, यहाँ पर एनकोडर खत्म है। हाँ बोलिए जी सर। जैसे आपने कहा कि हम लोग स्वैप कर रहे हैं एक तरीके से उनकी पोजीशंस, तो पहले हम लोग एक इमेज जनरेट करें, उसके बाद मतलब हम लोग मे भी कुछ एक मैपिंग टाइप का ऐसे कुछ
अज्यूम करता है जो हम लोग के पास गिवन डेटा सेट है उससे, तो मतलब जो हम लोग की जनरेटेड इमेज है वो कितनी दूर है किसी पर्टिकुलर से, और हाँ, मतलब तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इमेज बन करके आई ये मेरे डेटा सेट के जैसी है, और मान लो मेरा डेटा सेट जो है वो x इमेजेस रखता है, ये मेरा डेटा सेट है, इसमें x इमेजेस रहती है और वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। अगर वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं तो जो नया पॉइंट बना ये मेरे किस डिस्ट्रीब्यूशन के पास में होना चाहिए, मतलब ये जो है क्या ये मेरे डेटाबेस से आ रहा है, तो ये देखने के मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन में रख दूं तो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ये आए। सिंपल हो गई बात जी। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को खेलना पड़ेगा, जो कि अभी तक आप टच नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये आपको कहना है कि क्या ये पॉइंट उस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है जिसमें मेरे डेटा सेट की इमेजेस हैं, और यही करने के लिए जो नेटवर्क बनता है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर। यही करने के लिए ये मैं आपको 2 मिनट में भी बता सकता था, लेकिन मैंने बहुत सारा समय लिया, धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पहुंचाया। पहली चीज ये, ठीक है, नाउ लेट अस सी कि गैन करता क्या है। आपके सामने रखता हूँ, कोई नई चीज नहीं है, पुराने जमाने की बात है, VAE जो अभी आपको इतनी देर तक बताता रहा। यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट की मांग की जो कि है Z, उसको उठा के गैन या जनरेटर के अंदर डाल दिया। जनरेटर के अंदर जैसे ही डाला, जो कि एक डिकोडर टाइप का नेटवर्क है, आपको दिखता होगा कि ये छोटा लेगा और धीरे धीरे अप सैंपल करके बड़ा करेगा और एक इमेज बना देगा। वो इमेज का नाम GZ कह दिया। ये नेटवर्क अनट्रेंड है, यूनिट नॉर्मल से लेगा, कुछ भी उल्टी सीधी चीज बना देगा जो कि GZ है। मान लो Z G में गया, GZ है। ये GZ जितने भी मैं यहाँ पे एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, जितने भी बने वो एक बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, अलग अलग चीजें बनाता गया। जो ये बनाता गया ये GZ का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये GZ का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने देखा कि जनरेटर ने कुछ भी ऐसी चीज टच नहीं की जो डेटा सेट से आ रही हो। जनरेटर ने यूनिट नॉर्मल से उठाया, जनरेटर को दिखाया, जो कुछ बना वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जो भी GZ बन रहे हैं वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास रियल डेटा, ये मेरा डेटा सेट है जिसमें 10,000 20,000 जो भी इमेजेस है वो रियल डेटा है। मैंने एक डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन किया। डिस्क्रिमिनेटर कौन है? डिस्क्रिमिनेटर जैसे रेसनेट, इंसेप्शन, कोई भी क्लासिफिकेशन नेटवर्क, किसी भी प्रकार का एक क्लासिफिकेशन नेटवर्क, उसको दो तरह की इमेजेस दिखाई जाएंगे। इट्स गोइंग टू सी टू टाइप ऑफ इमेजेस, वन विच इज कमिंग फ्रॉम रियल डेटा एंड वन विच इज कमिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटर डेटा। और उसका काम क्या है? उसका काम है कि अगर वो रियल डेटा से आए तो बताओ कि वो रियल है, और अगर वो फेक से आए तो बताओ कि वो फेक है। दिस डिस्क्रिमिनेटर इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन नेटवर्क। और ये क्या सीख रहा है? देख रहे हो ये क्या सीख रहा है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सीख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो रियल से आएगी तो बताएगा ना, उसको पता चल गया कि रियल इमेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर कोई इमेज जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है और वो इसको दिखाई जाए तो इसको कहना पड़ेगा कि यार वो तो फेक है, अदरवाइज को कहना पड़ेगा कि रियल है। और ये कब सीखा होगा? ये तब सीख गया होगा कि अगर इसे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बारे में अंदाजा लग गया हो। तो मैं एक पॉइंट लेता हूं, मतलब एक रैंडम पॉइंट, रैंडम, ये रैंडम है एक्स, यूनिट नॉर्मल, अंदर गया, GZ आया, डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। मुझे ऐसे इस जनरेटर को ट्रेन करना है कि यूनिट नॉर्मल से कुछ भी ले, इस जनरेटर को दिया जाए, जो कुछ बने उसका डिस्ट्रीब्यूशन और रियल डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में जितना कम डिफरेंस हो उतना अच्छा है। मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेटर को मैं रियल दिखाऊं चाहे फेक दिखाऊं, वो समझ ना पाए कि रियल है कि फेक है। बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर इज अ बाइनरी डिस्क्रिमिनेटर, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन की मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? मिनिमम परफॉर्मेंस। बाइनरी क्लासिफिकेशन की मिनिमम परफॉर्मेंस क्या है? किसी ने कुछ तो यहाँ लिख दिया चैट में, हाउ डू वी कंपेयर, ये आ रहा है ना, ये मैंने बता दिया। अभी आते हैं, क्वेश्चन क्या था? बाइनरी की मिनिमम, बाइनरी की मिनिमम, बाइनरी की मिनिमम, बाइनरी की मिनिमम, बाइनरी। आयुष गुप्ता तुम बताओ। यस सर। बाइनरी क्लासिफिकेशन की मिनिमम परफॉर्मेंस क्या है? सर 0।
जीरो नहीं हो सकती, यही तो मैं टिपिकल सवाल ही पूछता हूँ, मतलब सिंपल ही सवाल होता है बट वो थोड़ा सा उसमें पॉइंट है। सर ये 0.5 होता है। 0.5, तुरंत तुमने सही बात कर दी, क्योंकि अगर तुम्हारी 0.5 से कुछ भी कम है तो मैं अगर उसका इनवर्स भी कर दूं ना, तुम बोलोगे यस, मैं समझूंगा नो। तो अगर तुम्हारी 30% परफॉर्मेंस है तो 30% नहीं है, डोंट वरी, इट इज 70%, क्योंकि बाइनरी है ना, आई जस्ट हैव टू स्विच। तो जैसे ही ये वाली बात हो गई तो आई एज्यूम दैट ये जो बाइनरी क्लासिफिकेशन इस जगह पे हो रहा है, इसकी परफॉर्मेंस, इफ माय नेटवर्क इज प्रॉपरली ट्रेन्ड, तो मेरा डिस्क्रिमिनेटर कितनी परफॉर्मेंस रखना चाहिए, विद व्हाट प्रोबेबिलिटी इट इज सेइंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम रियल और इट इज कमिंग फ्रॉम फेक, ये बताएंगी हिमानी जोशी। आप बताइए हिमानी जोशी। हिमानी जोशी हैं? यस यस सर। हाँ, आप बताइए कि अगर ये नेटवर्क पूरा ट्रेन हो गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी से, जब वो रियल से ले चाहे फेक से ले, कितनी प्रोबेबिलिटी से डिस्क्रिमिनेटर को परफॉर्म करना चाहिए? आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, मैं एक बार आपको क्वेश्चन रिपीट करूं? यस सर। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ भाई। एक Z लिया, इसके अंदर दिया GZ आया, GZ खूब सारे मिल गए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ये और रियल का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अब मैंने कुछ इमेजेस रियल से उठाई, कुछ इमेजेस फेक से उठाई, इनको मिलाया और इस नेटवर्क को दिखाया। अगर मैं रियल इमेजेस को दिखाऊंगा तो इसको कहना है कि ये रियल है, अगर मैं इसे फेक इमेज दिखाऊंगा तो इसको कहना है कि ये फेक है। तो ये डिस्क्रिमिनेटर एक बाइनरी क्लासिफायर की तरह से ट्रेन हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। अगर ये एक बाइनरी क्लासिफायर की तरह ट्रेन हो गया और जब ये बहुत देर तक ट्रेन हो गया, ये नेटवर्क कन्वर्ज हो गया, once this network is converged and your generator is producing good images, ऐसी इमेजेस जो अच्छी लिख रही हैं, जो साफ सुथरी और लग रही हैं कि जो रियल इमेजेस हैं, तो डिस्क्रिमिनेटर कितनी परफॉर्मेंस देगा? 10%, 20%, 30%, 40%, कितनी? With what probability it will be able to say any image which is it coming from real data or fake data? सर अगर अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है डिस्क्रिमिनेटर की इमेज रियल डेटा जैसी ही है, तो सर प्रोबेबिलिटी तो हाई होनी चाहिए। हाई, यहीं पे हमारा पूरा खेल है। कंफ्यूजन ये है कि देखो, इसे बेवकूफ बनाना है, ये पुलिस है ना, पुलिस को सब कोई फिल्मों में बेवकूफ बना देते हैं। yes, तो ये क्या कर रहा है, नकली नोट छाप रहा है और ये असली नोट है। yes, तो ये नकली नोट छापता है, पुलिस को दिखाता है, पुलिस कहते हैं बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि रियल नोट तो ऐसे होते हैं, इसको दिख रहा है ना, रियल और असली और रियल और फेक दोनों तरह की करेंसी दिख रही है। yes, तो जैसे ही ये कहता है अरे ये फेक है, तो ये देखता है अच्छा इसने इसमें एक लाइन देखी है, जनरेटर ये चोर समझता है, नोट के अंदर ये वाली लाइन ढूंढ रहा है, ये एक लाइन लगा के दिखाने लगता है। तो कहता है अच्छा लाइन ढूंढने लगा, तो फिर अब डिस्क्रिमिनेटर कहता है लाइन नहीं देखूंगा, अब देख रहा है ये बापूजी की फोटो है, इसने कहा ये बापूजी की फोटो लगा देते हैं। बापूजी की फोटो के बाद ये कुछ और पूछता है, एक एक करके यहाँ पे ये फीचर डालता जाता है और डिस्क्रिमिनेटर धीरे धीरे करके रियल और फेक के बीच का डिस्टिंक्शन भूलता जाता है। और जब ये फुल्ली ट्रेंड हो जाएगा तो क्या बनाएगा, तो जनरेटर ऐसी इमेजेस बना रहा होगा जो ये डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाएगा कि ये रियल है कि फेक है। तो विद 0.5 प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिमिनेटर कैन डिफरेंशिएट कि वो रियल है कि फेक है। जब ऐसा हो जाएगा तब आपका जनरेटर बढ़िया जवाब दे रहा होगा। अगर ये पूरी तरह से ट्रेन हो गया तो ये बकवास जवाब दे रहा है। कब होगा ऐसा? बिल्कुल शुरू में, क्योंकि ये तो ब्लैंक पेपर दिखाएगा इसको, ब्लैंक पेपर, और यहां से इसको रियल नोट दिखेगा तो कहेगा बिल्कुल बेकार, ये ब्लैंक पेपर में कुछ है ही नहीं। फिर ये ब्लैंक पेपर में 50 लिख के दिखा देगा, फिर ये ब्लैंक पेपर में 50 के साथ लाइन लिख के दिखा देगा, फिर रंग भरना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे जनरेटर इसको फूल करना सीखेगा। तो रियल डेटा के साथ जो जनरेटर है वो डिस्क्रिमिनेटर को जब धीरे 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 फूल करना स्टार्ट कर देगा, और जब डिस्क्रिमिनेटर फूल हो जाएगा पूरी तरह, तब ये जनरेटर जो है ये काम आएगा और रियल डेटा बनाना स्टार्ट करेगा। क्या ये बात सभी कोई समझ गया? यस सर। मेरे को एक डाउट है वर्ड्स को। हाँ पूछिए
पूछिए। तो द थिंग इज कि अगर रियल में से रियल का उसने आधा वो रियल को रियल बोल रहा है, आधे रियल को फेक बोल रहा है, ठीक है। फेक में से भी हाफ फेक को फेक बोल रहा है, हाफ फेक को रियल बोल रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस 50% होगा, बट इसकी ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं होगी। देखिए मतलब ये नहीं, आपका जो कहना है उस पे हम आएंगे। वो है ये कि डेटा प्रॉपरली डिवाइड होगा कि नहीं होगा और किस तरह से हम बैच बनाएंगे, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन हम अभी ये कह रहे हैं कि अगर जो ये इमेज बनाता है, अगर उसको देख करके डिस्क्रिमिनेटर ये डिफरेंशिएट न कर पाए कि वो रियल है कि जनरेटेड है, तो आपका जनरेटर सही साबित हो गया। सर माय क्वेश्चन इज कि हमें ये करना है ना कि वो हर रियल को रियल बोले और हर फेक को भी रियल बोले। देखिए, हर रियल को वो रियल बोले और हर फेक को भी वो रियल बोले, तो हमें 50% परफॉर्मेंस मिलेगी। नहीं, हमको ये कहना है कि वो हर फेक को रियल बोले, हर फेक को रियल बोले। रियल के साथ क्या करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है कि मेरा जनरेटर जो कुछ भी दिखाया जाएगा डिस्क्रिमिनेटर को जनरेटर से बना हुआ, उसको इसे रियल कहना है। रियल तो तब कहेगा ना जब वो रियल को सीखेगा कि रियल कैसा दिखता है। हाँ, तो रियल से तो मतलब है हमें। ठीक है, अभी इसके लॉस पे भी आएंगे और डिटेल में इसको देख लेंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट सिंपल समझ लें, और वो ये है कि इन दोनों के बीच में एक तरह की लड़ाई स्टार्ट हुई। और वो लड़ाई ये है कि जनरेटर जो कुछ भी दिखाएगा, डिस्क्रिमिनेटर को ये समझना है कि वो रियल और फेक के बीच में डिफरेंसेस कर पा रहा है कि नहीं, और जनरेटर को ये सीखना है कि जो कुछ डिस्क्रिमिनेटर करता है वो क्या है जो रियल और फेक के बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है, जिसके कारण, और वही चीज लगा के देते रहना। धीरे धीरे जब डिस्क्रिमिनेटर पूरी तरह से फूल हो जाए, उस वक्त डिस्क्रिमिनेटर को हटा देना और सिर्फ जनरेटर को यूज करना, क्योंकि अब जो जनरेटेड इमेजेस हैं वो ऐसी हैं जैसी कि रियल इमेजेस होती थी। इसमें पहली बात जो निकल करके आती है वो ये है कि इसमें L2 टाइप का लॉस हटा दिया गया है, क्योंकि करस्पॉन्डेंस है ही नहीं कोई। जब करस्पॉन्डेंस नहीं है तो लॉस क्या बना? तो एडवर्सेरियल लॉस कहते हैं इसको, एडवर्सेरियल लॉस। इस एडवर्सेरियल का लॉस मतलब ये होता है कि वो ट्रेन कर रहा है इस नेटवर्क को एज अ एडवर्सरी। इस नेटवर्क को बेसिकली हम लोग एडवर्सेरियल लॉस या एडवर्सरी की तरह ट्रेन करते हैं। गैन का मकसद है एक जनरेटर को ट्रेन करना एक डिस्क्रिमिनेटर के साथ एडवर्सेरियल लॉस के थ्रू, जिसमें कि आपको क्रॉस एंट्रोपी का लॉस बनता है। और क्रॉस एंट्रोपी क्या होती है? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, जिसमें कि आप सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि जितनी इमेजेस को जनरेटर ने इमेजेस बनाई, डिस्क्रिमिनेटर ने देखी, और यदि वो उनको ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो मैं वो लॉस निकालूंगा और उसको डिस्क्रिमिनेटर पे बैक प्रोपेगेट करूंगा, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटर का लॉस है। एंड सिमिलरली उसी लॉस को यूज करके हम कैसे जनरेटर को ट्रेन करेंगे, ये मेरे अगले स्टेप में आएगा। लेकिन एक बार हम लोग पहले यही सारी बातें ओपन तौर पे समझ लें। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, we wanted to generate a distribution that is very close to data set distribution, इसलिए generative है। Using adversarial training जिसमें एक constant apposition हो, adversarial है। We devise two network, generator और discriminator, जो कि constant apposition provide करेंगे। तो GAN में एक G है एक D है, ये दोनों एक दूसरे से लगातार compete करते हैं। Adversarial training का मतलब है essentially required MSE introducing blur। तो adversarial training में it requires an MSE. So, adversarial training is essentially required as MSE introduce blurring effect. तो adversarial में आप देख रहे हैं किसी भी तरह का MSE नहीं निकाला जा रहा है। चूंकि MSE नहीं निकाला जा रहा है तो ब्लर वगैरह आने की संभावना कम है। बट MSE निकाले बिना इमेज को डेटा सेट के जैसी इमेजेस पे कन्वर्ट करने के लिए L2 के बदले एडवर्सेरियल टाइप के लॉसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था GAN में। Generative network can be seen as a function that can take a random vector Z लेता है। generative adversarial का जो generator है Z लेता है, GZ बनाता है। मान लो कि Z 128 डायमेंशन का है तो GZ 256 by 256 पे ले आता है, और उसके बाद
जनरेटर फंक्शन क्या है, z से इट्स एक्चुअली कन्वर्टिंग इट इनटू एन x, और जो gz आता है वो हम मानते हैं कि वो क्या है, वो gz जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉलो करे वो एज क्लोज एज टू माई रियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आपके सामने पहला गैन का बड़ा डायग्राम क्या होता है इसमें, बल्कि आईएस यहां से देखते हैं, पहले इधर कोई दिखा दे क्या, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है एक एक करके चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z ये है, कौन क्या है, यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ही मान लिया यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट नॉर्मल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए हमने इसको pz कह दिया। इससे एक पॉइंट को सैंपल किया, एक फंक्शन को डाला जो z से x बनाना जानता है, जिसको हमने जनरेटर बोला, gz बना। ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ gz है, gz डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या, ये रियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जिसको हम लोग कभी टच नहीं कर पाते थे। मैंने कहा कि एक हमें इन दोनों के बीच में ऐसा, मतलब ये ऐसा सीखे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी एज क्लोज एज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सिखाएं कैसे, तो पहले pz डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट लिया, इंदर डाला, gz आया, gz डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी सैंपल यहाँ पर हैं और px डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल्स यहाँ पर हैं। मैंने एक बैच बनाया, एक बैच जो डिस्क्रिमिनेटर को दिखाया जाएगा, उसमें मैं सबसे पहले x1, x2, x3, x4 ये ऊपर से आ रहा है, तो मैं कुछ इमेजेस यहाँ से लूंगा, कुछ इमेजेस यहाँ से लूंगा। जो इमेजेस ऊपर से लिए हैं उनके लेवल 1 है, जो इमेजेस नीचे से लिए हैं उनके लेवल 0 है। तो 1 का मतलब है रियल, 0 का मतलब है फेक। डिस्क्रिमिनेटर के अंदर जाएगा, उसका काम है कि रियल को रियल कहना, फेक को फेक कहना। जनरेटर क्या कोशिश करेगा, जनरेटर ये कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा हो सके डिस्क्रिमिनेटर क्या जवाब दे, 0 दे कि 1 दे, चैट में लिख सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके डिस्क्रिमिनेटर हमें क्या जवाब दे, जितना ज्यादा हो सके डिस्क्रिमिनेटर हमें 1 बोले, क्योंकि 1 रियल है। तो ऊपर से आ रहा है तो भी 1 बोले, और अगर मैं भी दे रहा हूं वो भी 1 बोले। अगर ज्यादा से ज्यादा 1 आ रहे हैं मतलब डिस्क्रिमिनेटर फुल हो रहा है। डिस्क्रिमिनेटर क्या कहेगा, डिस्क्रिमिनेटर कहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 0 नहीं, डिस्क्रिमिनेटर ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि मैं जितने भी 0 हैं, डिस्क्रिमिनेटर का काम एक ही है, डिस्क्रिमिनेटर का काम ये है कि 1 को 1 बोलना, 0 को 0 बोलना, 1 को 1 बोलना, 0 को 0 बोलना। मुझे ये सीखना है। जनरेटर को ये कहना है कि जो कुछ भी मैंने दिखा रखा है gz, उन सब के लिए वो 0 बोलने के बदले 1 बोले। So discriminator network needs to figure out features. Discriminator. Discriminator. हाँ बोलिए। सर आप कह रहे हैं कि हमने जनरेटर को एक z दिया और जो gz जनरेट हुआ, आप बार बार बोलो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमारे बैच में हमने 5 एनकोडिंग्स दिया और अब हमें 5 इमेजेस मिल गई हैं, तो मैं 5 gz डायरेक्टली डिकोडर में दूंगी या ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से कोई 5 सैंपल करके दूंगी? अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें कोई भी सैम्पलिंग नहीं होती और इसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं है। हम लोग बात करने के लिए कर रहे हैं gz की प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। लेकिन हम इन्हीं में से एक बैच लेंगे, उस बैच में से 1 2 3 4 5 लेंगे, इन 5 को इसके अंदर पास करेंगे, 1 2 3 4 5 मिलेंगे, इन 5 को यहाँ फंसाएंगे और इन 5 के करस्पॉन्डिंग नहीं, कोई रैंडम 5 ऊपर से लेंगे और मिलाएंगे और पास कर देंगे, ठीक है। हाँ जी। ओके, हाँ पूछिए। सर एक ये डाउट था कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क है ये ट्रेन नहीं होता है ना, ये प्री ट्रेन नेटवर्क है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? प्री ट्रेन नेटवर्क, हाँ बोलो। मतलब ज्ञान में ट्रेन नहीं होता, ये पहले से ही ट्रेन होके आया है ऐसा कुछ, मतलब पहले से ही उसको क्लासिफिकेशन करना आता है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जानते क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो देखो, सबसे पहले क्या है, मन में अपने सोचो कि एक रैंडम इमेज गॉसियन जी के अंदर गई, एक रैंडम z जब g के अंदर जाएगा तो एक आर्बिट सी ब्लैंक इमेज, ब्लैक इमेज, व्हाइट इमेज ही तो ना बनेगी। और ऐसा होगा हमेशा, व्हाइट इमेज, ब्लैक इमेज, स्ट्रिप इमेज, कुछ तो आर्बिट बनेगी शुरुआत में। वो ये सारी इमेजेस हैं। जब वो मेरे नेटवर्क डी को दिखाई जाएंगी तो इसमें से कुछ इमेजेस जो ये हैं, जो ये हैं, जो ये हैं, ये बिल्कुल ब्लैक हैं,
अच्छा, जो एक्सेस है वो कैसे है? रियल है। अब किसी भी नेटवर्क को अपने मन में सोच लो, अगर वो प्री ट्रेंड है तो कितनी आसानी से इसके और इसके बीच में डिफरेंशिएशन सीख लेगा, हाँ या ना? जल्दी से सीखेगा ना, और बल्कि सीख चुका होगा। अगर आप तो कह रहे हैं कि वो तो प्री ट्रेंड है, तो वो कभी भी इससे बेवकूफ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो तुरंत ही सीख गया। अब जो लॉसेज आएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लॉस डिस्क्रिमिनेटर के हैं ना, जो गलतियां डिस्क्रिमिनेटर कर रहा है उनसे तो डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन होगा। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने फिर से बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुने। जो गलतियां डिस्क्रिमिनेटर करता है उन गलतियों से कौन ट्रेन होगा? डिस्क्रिमिनेटर। क्लियर? ये बात तो क्लियर है ना कि जो गलतियां, जिन इमेजेस पे डिस्क्रिमिनेटर गलती करेगा उनपे ये ट्रेन होगा। कौन? डिस्क्रिमिनेटर पे जाएंगे वो लॉसेस, और जिन पे वो अच्छे से काम करेगा वो लॉसेस किस पे जाने चाहिए? जनरेटर पे। आप सही पॉइंट पकड़ लिया। जिन पे वो, अभी आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ प्रतीक, डोंट वरी, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, है ना? जिन पे वो अच्छे से काम करता है उनको तो मैं डिस्क्रिमिनेटर में बैक प्रोपेगेट करूंगा। सॉरी, जिन पे वो खराब तरह से काम कर रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेटर के लॉसेज है तो वो डिस्क्रिमिनेटर को बैक प्रॉप करेंगे। लेकिन डिस्क्रिमिनेटर जिन पे अच्छे से काम कर गया, डिस्क्रिमिनेटर जिन पे अच्छे से काम कर गया, किसकी गलती है? जनरेटर की। तो वो सारे लॉसेस जनरेटर को बैक प्रॉप करेंगे। सेम लॉस दोनों के लिए नहीं है। बराबर। अगर इसका लॉस L है ना तो 1 माइनस L लॉस जो है वो इस पे जाएगा, जिन पे ये अच्छे से चला वो लॉस इधर जाएगा। अब आते हैं प्रतीक आपकी बात। हाँ, अब पूछिए एक बार फिर से। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये कि अभी जैसे पहले कोई भी फर्स्ट चीज है जब ना जनरेटर ट्रेंड है ना डिस्क्रिमिनेटर ट्रेंड है। हाँ। तो अभी मैंने उसको एक G दिया और मैंने उसको एक रियल डेटा दिया, रियल इमेज डिस्क्रिमिनेटर को। तो अभी क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, इसको पता ही नहीं है कैसे क्लासिफाई करना है, तो वो कैसे क्लासिफाई करेगा? बिल्कुल सही कहा। चलो, इसको मैं एक आपके ना पहले एक रियल एग्जांपल पे आके समझाता हूँ, फिर आपको इसी पॉइंट को समझा दूंगा। तो रियल एग्जांपल ऐसा है कि भाई मुझे भी क्रिकेट नहीं खेलना आता और प्रतीक को भी क्रिकेट खेलना नहीं आता, ठीक है? अब हम दोनों लोग आपस में सीखे, तो तुमने कहा अरे आदित्य निगम सर को कितनी बैटिंग आती है और ये तो अब एज भी इनकी हो गई, इतनी जल्दी आउट ही हो जाएंगे। मान लिया तुम्हारी बात। तो तुमने कहा किससे सीखोगे खेलना? तुमने कहा सचिन तेंदुलकर से। मैंने कहा गुड। अब तुम क्रिकेट नहीं खेलना जानते हो और तेंदुलकर एक प्री ट्रेंड नेटवर्क है। तुमने कहा लाओ लेग स्टंप पे डालें, 4 पड़ गया। फिर तुमने कहा अच्छा लेग स्टंप पे तेज खेलता है, क्योंकि तुमको लॉस बैक प्रोपेगेट हो के मिल रहा है ना, 4 पड़ गया तो वही लॉस तुम्हें बैक मिला। तो तुमने कहा ओहो लेग साइड में इसका फास्ट है, ऑफ साइड में डाल दिया, 4 पड़ गया। उसके बाद तुमने मिडिल स्टंप पे डाला, फिर से 4 मार दिया। क्यों? क्योंकि वो तेंदुलकर है। क्यों? क्योंकि वो एक प्री ट्रेंड नेटवर्क है। तुमको वो हमेशा फेल करेगा और वो हमेशा तुम्हारी बातों को काटेगा। बराबर। जब अगर तुम लगातार कटते चले जाओगे ना, मतलब देखो, तुम कह सकते हो कि तुम सेकंड क्लास में हो लेकिन IIT JEE का एग्जाम दे दूंगा तो मुझे सारे लॉसेस मिल जाएंगे। मैंने कहा दे लो एग्जाम। अरे तुम एक भी सवाल नहीं कर पाए, 0 नंबर आ गया। तुमने कहा मुझे बैक प्रोपेगेट कर दो, तुमको बैक प्रोपेगेट किया जाएगा। क्या बैक प्रोपेगेट करे? आपके सारी चीजें 0 है, आपका एक भी चीज सही नहीं था। आपने फिर से एग्जाम दिया, आपकी फिर से सारी चीजें 0 हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेटर वेरी पावरफुल है और आप उस हाईली पावरफुल को कुछ भी शुरुआती, क्योंकि जी तो शुरू में बिल्कुल साधारण सा काम करेगा। तुम एक बॉलर हो, तेंदुलकर को क्या ही ना बॉल करोगे, ना स्पीड होगी ना स्पिन होगा, हल्के फुल्के फेंकोगे और तुम सोचोगे कि उसके चौवे जितने वो 4 मारेंगे उतने चौवों से तुम सीखते जाओगे। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। बदले इसके तुम सचिन तेंदुलकर के बदले अब तुमने मेरे साथ खेलना स्टार्ट किया। अब हम भी ज्यादा नहीं खेल पाते, तुम भी ज्यादा नहीं खेल पाते। तो क्या होगा कि पहले तुम एक डालोगे गेंद बेकार सी, तो मैं हो सकता है कि मैं भी मिस कर जाऊं, लेकिन फिर मैं समझूंगा कि अच्छा ये बार बार इधर की तरफ डाल रहा है। फिर मैंने एक 4 मार दिया। अब मैंने जब 4 मारा तो तुमने कहा अच्छा इसका लग रहा है ऑफ स्टंप सही है। फिर तुमने मिडिल स्टंप पे डाली, मैं बोल्ड हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों लोग सीख रहे हैं। कंपटीशन, अगर इफ कंपटीशन स्टॉप्स इन गैन, लर्निंग बंद हो जाएगी। जैसे ही कंपटीशन रुकेगा, क्यों? क्योंकि कंपटीशन रुकने का मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेटर पूरी तरह ट्रेन हो गया तो लॉस मेरा क्या हो जाएगा? 0।
अगर मेरा लॉस 0 हो गया, ये बहुत कम हो गया, तो डिस्क्रिमिनेटर तो ट्रेन ही नहीं होगा ना। इन द अदर वे, अगर मेरा लॉस बहुत हाई हो गया तो 1 माइनस लॉस बहुत कम होगा, तो जनरेटर नहीं ट्रेन होगा। तो इस कारण से इन दोनों को अटकना है जाकर के एक ही जगह पे, और इसलिए ये साइमल्टेनियसली ट्रेन होते हैं पहली बार। सर तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं डिस्क्रिमिनेटर को? डिस्क्रिमिनेटर भी पैरामीटर है, इनिशियलाइज होते हैं। जैसे नेटवर्क इनिशियलाइज होता है, वैसे डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर दोनों नेटवर्क इनिशियलाइज कर दिए जाते हैं रैंडमली। तो जैसे रैंडम, सो जो फर्स्ट वाला जो डिस्क्रिमिनेटर भी जो आउटपुट दे रहा है वो भी सॉर्ट ऑफ रैंडम ही है, मतलब वो रियल को कुछ भी बोल रहा है, फेक को कुछ भी बोलेगा, रियल को भी कुछ बोलेगा, फेक को भी कुछ भी बोलेगा, और उसकी परफॉर्मेंस भी कुछ तो आर्बिट आएगी। वो रियल थोड़ी जानता कि क्या है रियल। ओके। अगर उसे रियल पता चल गया ना शुरू से ही, अगर वो प्री ट्रेंड है, सम इमेज नेट का प्री ट्रेंड वेट्स ले लिए तुमने, तो अब नहीं कुछ ट्रेन होगा। ओके। और दूसरी बात, आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूँ यहीं पे, उसके बाद हम लोग लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। देयर आर 2 टास्क्स व्हिच दिस नेटवर्क इज एक्चुअली डूइंग। फर्स्ट वन इज द जनरेशन, सेकंड वन इज द डिस्क्रिमिनेशन। एंड इफ आई टेल यू दैट व्हिच वन इज इजियर टू डू, जनरेशन इजी है कि डिस्क्रिमिनेशन इजी है, तो सभी कोई समझता है यार डिस्क्रिमिनेट करना आसान है। एक छोटे बच्चे को अगर मैं ए दिखाऊं और बी दिखाऊं और खूब सारे ए और बी दिखाता जाऊं और बोलूं कि ये ए है और ये बी है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएगा। और जैसे ही वो डिस्क्रिमिनेट करना सीखा, मैंने कहा एक काम करो, जरा ए लिख के दिखाओ, तो लिख थोड़ी पाएगा, बिकॉज लिखने के लिए जनरेट करना सीखना पड़ता है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट the both of them are trying to do the work. This is generating, this is discriminating. डिस्क्रिमिनेटर जल्दी ट्रेन होता है, ये धीरे धीरे ट्रेन होता है। और अगर कोई चीज जल्दी ट्रेन हो जाती है तो ये जल्दी ही, अगर ये थोड़ा भी ट्रेन हो गया ना, उसके बाद जनरेटर को इसको पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसकी लर्निंग को। इसलिए डिस्क्रिमिनेटर को कम ट्रेन करते हैं, जनरेटर को ज्यादा ट्रेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 3 राउंड के बाद डिस्क्रिमिनेटर में बैक प्रोपेगेट करेंगे लॉस, और इसमें तो हर राउंड के बाद अपडेट कर रहे होंगे लॉस, तो लॉसेस मुझे हर बार मिले। मैंने L1 निकाला है, L2 निकाला है, L3 निकाला, L1 L2 L3 के करस्पॉन्डिंग माइनस L1, 1 माइनस L1, 1 माइनस L2 एंड 1 माइनस L3 इसको निकाल करके मैं 3 बार इसको बैक प्रोपेगेट कर चुका हूँ, तब जाके पहली बार मैं कहो डिस्क्रिमिनेटर को बैक प्रोपेगेट करूँ। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटर को कम ट्रेन किया जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है। और अगर आप कभी भी गैन को ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआती स्तर पे जो गैन से जो इमेजेस बन रही होंगी, मान लो ये है वो इमेजेस, दे आर वेरी पुअर, दे आर बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स, और यहाँ पर एकदम डेटा सेट की इमेजेस रखी होंगी जो एकदम नीट एंड क्लीन है। तो खुद ही मन में सोचो कि ये डिस्क्रिमिनेटर कितनी जल्दी ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि इसको शुरू में एकदम बेकार सी इमेजेस दिखा रहे हो और यहाँ से बहुत अच्छी इमेज दिखा रहे हो। द टास्क ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इजी फॉर इनिशियल बैचेस, इसीलिए इसको स्लो ट्रेन करते हैं। ठीक है सर। खैर, अभी हमने डिटेल में लॉसेस के बारे में नहीं बताया हुआ है, हम ये लॉसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने बताया कि जनरेटर के लॉस क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेटर के लॉस क्या होंगे, और फिर ये देखेंगे कि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के लॉसेस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, क्योंकि 2 अलग अलग तरह के लॉसेस आ गए। अभी हेट्रोजीनियस नेटवर्क हो गया है जिसमें एक नेटवर्क का लॉस अलग है, दूसरे नेटवर्क का लॉस अलग है, और इन दोनों लॉसेस को मिनिमाइज करने के बाद क्या हो क्या रहा है, क्योंकि जेएस डाइवर्जेंस की बात करी थी सर ने, तो वहां केएल डाइवर्जेंस और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, फिर आप जेएस डाइवर्जेंस की तरफ लेकर के आए और फिर आपने बोला कि जेएस डाइवर्जेंस मिनिमाइज होता है गैन में। लेकिन ये जो गैन मैंने आपके सामने बना करके रखा हुआ है, इसमें मैंने कहीं भी जेएसडी के बारे में बात ही नहीं की, आया ही नहीं ना, सब कुछ इम्प्लिसिट है। एक ही चीज एक्सप्लिसिट है कि ये डेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसके थ्रू एस्टिमेट कर रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि अननोन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एस्टिमेट किया जा रहा है। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे तुरंत अभी पूछेगा। चल, किसी को सवाल पूछना हो 111 तो सवाल पूछें मुझसे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जो जनरेटर होता है वहां पर हम
सैंपल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इमेजेस जनरेट करते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं विद रियल इमेजेस। और डिस्क्रिमिनेटर में इमेजेस विच आर जनरेटेड बाय जनरेटर एंड जो रियल इमेजेस हम कंपेयर करते हैं। तो ये हाउ डू वी नो which of the images from this generated data set have to be taken for comparison, because वो तो एक random रहेंगी। हाँ, मतलब देखिए क्या है, हम एक बैच बनाते हैं, यहाँ भी एक बैच है, इस बैच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इमेजेस लिए एक बैच में, राइट। इमेजेस नहीं, सॉरी 10 जेड लिए, Z1 से लेके Z10 तक 10 लिए, 10 पॉइंट्स लिए, राइट, अंदर डाल दिए, यहाँ 10 पॉइंट मिल गए। जी सर। इन 10 को उठा, हाँ ये 10 यहाँ रखूंगा, हाँ जी, और ऊपर से कोई भी रैंडम 10 यहाँ रखूंगा। अच्छा, कोई भी रैंडम लेते हैं बेसिकली? कोई भी रैंडम, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, वही तो मैंने बताया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। VAE में करस्पॉन्डेंस हुआ करती थी, यहाँ पर तो बस उसको ये देखना है कि रियल और फेक। ओके, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, हाँ फिर तो इट मेक्स सेंस बिकॉज़ देन इट विल ट्राई टू ओके जनरेट फ्रॉम दो सैंपल्स ओनली। ओके, यस, ओके, गॉट। और कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछिए सर। हाँ पूछिए। जो भी सर आप जो रैंडम सैंपल ले रहे हैं ट्रेनिंग डाटा से, वो पर्टिकुलर इमेज से लेंगे कि पूरे हॉल? पर्टिकुलर इमेज का क्या मतलब है? हमारे पास एक बहुत बड़ा सा डेटा सेट है ये। सर जो आप 10 रैंडम सैंपल ले रहे हैं वो एक इमेज से लेंगे कि मतलब किसी भी इमेज से ले सकते हो? ये कह रहा है एक इमेज सिलेक्ट करने के बाद क्या मतलब है? एक मिनट रुक जाओ। इमेज से लेने का क्या मतलब है? मैंने, आप Z की बात कर रहे हैं कि आप X की बात? X से Z से 10 ये जो डेटा सेट है ना, ये देखो, ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में 10,000 इमेजेस हैं। ओके सर। ये है वो 10,000 इमेजेस, दिख रही हैं? यस सर। ये 10,000 में से कोई भी 10 चुन के यहाँ डाल दो रैंडमली, ठीक है? ठीक सर। और कोई पूछो? हाँ पूछो सर। ये VAE में थोड़ा एक बेसिक था कि सर KL डाइवर्जेंस। एक मिनट रुकना, एक मिनट, हम लोग VAE की बात कर लेते हैं। वैभव बोल रहे हैं? यस सर। VAE की बात मैं 1 मिनट करता हूँ, पहले जरा ज्ञान को निपटा दें। VAE की बात आपकी सुन लूंगा। और किसी को पूछना है VAE सॉरी ज्ञान कुछ भी पूछिए आप, कोई भी आदमी पूछ ले मुझसे तुरंत। कोई को नहीं पूछना है अब, किसी को नहीं पूछना अब। वैभव बाबा, हाँ बोलो आशिमा। सर अभी तो हमने कहीं कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला ही नहीं, जो GZ है वो डायरेक्टली देती है और ओरिजिनल इमेजेस डायरेक्टली देती। तो हम यहाँ बीच में जो PX निकालना चाह रहे हैं, जो भी आपने कल JSD कराया था, तो वो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पास करने के लिए लगाएंगे, पर यहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन एज सच हमने निकाला ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। और VAE के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन KLD निकाल के दिखा दिया गया था, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ। लेकिन हो सिर्फ इतना ही रहा है, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करूंगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जो गुड फेलो ने अपने पेपर में बताया कि जो कुछ भी मैंने इतने से इलाके में किया है, दिस इज एसेंशियली मिनिमाइजिंग द इक्विवेलेंट टू मिनिमाइज द GSD बिटवीन देम। ये प्रूफ आएगा बड़ा लंबा सा, तो इसको करेंगे एक एक करके। ओके सर। हाँ ठीक है। सर, और किसी को? हाँ एक चीज और सर, जैसे सर हम डिस्क्रिमिनेटर की बात करते हैं तो ये तो आया समझ में कि जो जनरेटर से जो आ रहा है और जो हम रियल लेते हैं उसमें कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है। तो जब एक रियल इमेज आती है और एक जनरेटेड इमेज मेरे पास आ रही है, तो वो दोनों एक साथ नेटवर्क में जाती हैं या एक एक करके जाती हैं, या फिर कोई सीक्वेंसिंग होती है कि पहले मतलब इतनी हम रियल भेजेंगे, इतनी हम फेक भेजेंगे? ठीक है, तो ये बिल्कुल फिक्स बात है कि जैसे मैंने यहाँ पे बैच बनाया, इस बैच में 60 40 50 50 व्हाटएवर, ये हम लोग अपने कोड में फिक्स करते हैं, बट मोस्टली 50-50 करके दिखा दिया कि 50 रियल जाएंगे, 50 फेक जाएंगी। और वो कितनी 50 जो है 50% वो यहाँ से आएंगी और 50% यहाँ से आएंगी, और इनकी कोई ऑर्डरिंग नहीं है। ये रैंडम शफल करके ही तो ना भेजेंगे जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक एक करके मेरा नेटवर्क देखेगा, पहले X1 देखेगा और बताएगा X1 इसके अंदर जाए, क्योंकि नेटवर्क तो सीक्वेंशियल है। तो एक्चुअली पैरेलली चल सकता है, जिसमें कि X1 इसके अंदर जाएगा और आपको पता चलेगा कि 1 है कि 0 है, अकॉर्डिंगली इसका लॉस निकल आएगा। फिर GZ1 अंदर जाएगा, फिर पता चलेगा कि 1 है कि 0 है, अकॉर्डिंगली इसका भी लॉस निकल जाएगा, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस।
सारे बैच का लॉस निकाल के जोड़ देंगे और बैक प्रोपेगेट कर देंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, और पूछिए, किसी और को पूछना है? किसी और को नहीं पूछना है तो वैभव तुम पूछ लो। वैभव, अभी वीएई वाली बात करने जा रहे हो तुम, है ना? यस वीएई के बारे में पूछ लो, चलो बताओ। सर केएल डाइवर्जेंस में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके लिए उसकी जगह पर हमने जेएस डाइवर्जेंस लाया था। हाँ। लेकिन बेसिक वर्क था हमारा केएल डाइवर्जेंस का, वो ये था बताना कि जो हमारे जेड म्यू या जेड सिग्मा जो निकल रहा है उसका यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सर सिमिलरिटी कितनी है। तो सर जब जेएस डाइवर्जेंस से रिप्लेस करेंगे, क्या सर उस तरीके से एक्यूरेसी इस पे देगा? अच्छा, तुम कह रहे हो कि हम लोग यहाँ पर ही जेएस डाइवर्जेंस का इस्तेमाल कर लें? मतलब जेएस इंस्टेड ऑफ केएलडी इफ वी यूज जेएसडी यूजिंग बिटवीन देम। यस सर। एक तो ये रिवर्स है और इसके बदले हम लोग जेएसडी यहाँ पर ये इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस तो देता ही होगा। You may probably get slightly better convergence than this. I am not very sure that is it done or not, because KLD उसकी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम KLD थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो Z से ऐसे करके लाया करता था, जबकि गैन ने टोटली मामले को चेंज करके बोला कि मैं यूनिट नॉर्मल से सीधा X बनाऊंगा और डायरेक्टली PX को एस्टिमेट करूंगा। So it may be the case कि ये JSD से इस JSD यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो maybe you may get slightly better convergence, but blurring तो इसके कारण रहेगी, और ये हटाना है पहला काम। तो इसको हटाने के लिए एडवर्सेरियल लॉस लेकर के आए वो। इसकी जगह सर अगर हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का अगर यूज करें तो कहाँ पे? यहाँ ये पे एसी की जगह पर, इसकी जगह? यस सर। इसकी जगह बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैसे लगाओगे? जो इमेजेस बन करके आ रही हैं, तुम्हारा कहना है कि जो यहाँ पर इमेजेस बन के आती हैं और मैं इसको बैच बना के दिखाऊं, क्योंकि करस्पॉन्डेंस नहीं रह जाएगी अब। ओके। तो आपको फिर यहाँ पे एक बैच बनाना पड़ेगा जिसमें ऊपर ऐसे रियल इमेजेस हो और फेक इमेजेस हो, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेटरी बन गया ना एक तरीके का। अच्छा। तो जो तुम बोल रहे हो ना, वही चीज धीरे धीरे गैन के अंदर लेकर के आई गई है। गैन यही तो ना कर रहा है ना कि ये डिकोडर जो है तुम्हारा, ये जो इमेजेस बना रहा है उसके ऊपर एडवर्सेरियल लॉस लगाते हो। ये जो इमेजेस बन के आए ये रियल है कि फेक है? तो यही तो हो रहा है ना यहाँ पे कि ये चीज इधर आ गई। yes. तो अगर तुम इसे हटाना चाहते हो तो तुम्हें ये तो देखना ही पड़ेगा कि ये रियल है कि फेक है। तो तुम एक और नेटवर्क ट्रेन करोगे इस तरीके का, एनकोडर नेटवर्क। एनकोडर तुमसे ये अंदर लेगा, एनकोडर नेटवर्क ऐसा होगा जो अंदर तुमसे ये एक्स लेगा और बोलेगा कि ये जो एक्स है ये रियल से आ रहा है कि फेक से आ रहा है। तो यही तो हो ही रहा है गैन में, है ना? ये चीज इधर चली गई और ये चीज इधर चली गई, तो यही तो हो रहा है कि ये कहता है कि जो इमेज बन रही है वो रियल है कि फेक है, क्योंकि आपको ये हटाना था x माइनस एक्स हैट, और कोई तरीका नहीं हटाने का। और सर ये जो केएलडी जगह जेएसडी करेंगे सर, वो ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि जैसा परफॉर्मेंस पहले था वैसे मतलब देगा इस केस में। हो सकता है ना थोड़ी बहुत बेहतर कन्वर्जेंस हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जेएसडी और केएल में यही डिफरेंस है कि जेएसडी जो अननोन डिस्ट्रीब्यूशन विच आर वेरी फार फ्रॉम देम, उनको भी ठीक से एस्टिमेट करा पाते हैं। तो चूंकि वीएई शुरू में ठीक से ट्रेन नहीं हो पाता और उसकी लर्निंग या स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तो मे भी अगर तुम केएलडी की जगह जेएसडी लगाते हो वीएई के लॉस में, ये आप करके भी देख सकते हैं। सो मे बी यू मे गेट स्लाइटली बेटर कन्वर्जेंस, मे नॉट बी बेटर इमेज क्वालिटी, बट हो सकता है जल्दी कन्वर्ज हो जाए और थोड़ा ठीक टाइप की जल्दी कन्वर्जेंस मिल जाए, स्टेबल कन्वर्जेंस मिल जाए। ब्लरिंग तो लॉस के कारण से आएगी ही आएगी, रिकंस्ट्रक्शन लॉस। ठीक है? यस ओके। बाय द वे रिकंस्ट्रक्शन लॉस कुछ ही समय में आगे आपको गैन में भी आता दिखेगा, तो तैयार रहें, बताऊंगा कि उसको लोगों ने गैन में कैसे और क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है सर? एक और बेसिक सवाल सर फंक्शनैलिटी के ऊपर। सर पूछिए।
सर जैसे हमने बोला कि सर जो डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क है सर, उसके पहले उसमें बेसिकली एक बैच जाएगा, गैन की बात कर रहे हैं सर, जिसमें लेट्स से 50% रियल हो सकती हैं, 50% फेक हो सकती हैं। तो फंक्शनैलिटी वाइज ये जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क क्या सिंक में नहीं चलते हैं? पहले डिस्क्रिमिनेटिव वेट करेगा कि कुछ डेटा बन जाए, फिर उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा। अच्छा, हाँ ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया ना, प्रोसेस ये है कि पहले कुछ सैंपल पॉइंट यहाँ से चुने जाएंगे, उनको उठा के इसमें डाला जाएगा, उनसे आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो ये हैं, उन इमेजेस से एक बैच बनेगा, अभी तक लॉस नहीं निकला है, फिर इनसे भी मिला करके यहाँ डालेंगे, ये जो बैच अंदर जाएगा उससे तुमको जो लॉस मिलेगा वो लॉस इसमें बैक प्रोपोगेट होगा। 1 माइनस लॉस का मतलब जिन पे इसने अच्छा काम किया वो वाला लॉस इनमें बैक प्रोपोगेट, और इसके बाद फिर से अगला बैच चुना जाएगा जेड का। लेकिन सर मतलब ऐसे जैसे डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क हो सर, इसको अगर बैच मोड में ना चलाएं, अगर स्टोकेस्टिक चलाएं तो वो भी चला सकते हैं सर? एक एक करके चलाएंगे अगर तो स्लो हो जाएगा ना, मतलब आप हमेशा चाहेंगे कि आपको स्टोकेस्टिक ही है ये, एक्चुअली दिस इज आल्सो स्टोकेस्टिक। इफ यू से दैट सिंगल सैंपल मोड में चलाए तो आपको पहले एक्स, आपने एक को यहाँ से चुना, इसको दिखा दिया, फिर आपने कुछ इससे चुना, फिर इसको दिखा दिया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वो स्लो ट्रेनिंग होगी और वो उतनी अच्छे से कन्वर्ज नहीं करती ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। ओके ठीक है, इसलिए बैच बना के दिखाया। ठीक, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए, थैंक यू।